میں نے آپ کے سامنے ایک آیت شریفہ کی تلاوت کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن کے شروع کے اندر ہی اللہ نے قرآن کے نزول کا مقصد بیان کر دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور یاد رہے کہ یہ شخص، یہ انسان وسیم رضوی پہلا انسان نہیں ہے جنہوں نے قرآن کے اوپر انگلی اٹھائی، بلکہ جب سے اس قرآن کا نزول ہوا اس وقت سے کفار مکہ مسلسل قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کا پاکیزہ کلام ہے، کہ جو انسان بھی صدق دل سے سنے گا، ایک مرتبہ سن لے گا، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ مقدس کلام وہ کلام ہے، وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم بات کرتے ہو 26 آیتوں کو نکالنے کی، تمہیں ایک حرف کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں صاف لفظوں میں جب قرآن کو نازل کیا اسی وقت اللہ نے کہہ دیا، رد و بدل کرنے کی بات دور کی ہے، ایک حرف ایک زیر و زبر کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس قرآن کا مقصد ھدی للمتقین ہے، متقیوں کو راستہ دکھانا ہے، بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھانا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے بیان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یاد رکھو قرآن کو میں نے اتارا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر لاکھ تم شک و شبے کی گنجائش نکالتے رہو، رد و بدل کی رائے رکھو، لیکن کر نہیں سکو گے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جاتے ہیں اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ وہ کفار مکہ جن کا کام صرف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح ختم کیا جائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس مذہب کو فروغ دے رہے ہیں، جس مذہب کو پھیلا رہے ہیں، لوگ دن بدن اس مذہب میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے، شروع سے کوشش رہی ہے اسلام کو مٹایا جائے، قرآن کا خاتمہ کیا جائے۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے لوگ آپس میں بیٹھے بھی، بڑے بڑے رؤساء مکہ، ابو جہل، ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، عتبہ بن ربیعہ، اسی طریقے سے اخنس بن شریق وغیرہ، یہ جو بڑے بڑے مکہ کے سردار قسم کے لوگ تھے، یہ آپس میں مل کر بیٹھے کہ آخر کیا راستہ اختیار کیا جائے کہ جس کی وجہ سے قرآن اور محمد سے چھٹکارا مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ایک نمائندہ مقرر کرتے ہیں جو جا کر محمد سے بات چیت کرے اور ان کے سامنے مختلف تجویز رکھے۔ چنانچہ اس کے لیے عتبہ بن ربیعہ کو تیار کیا گیا، اور یہ عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور آپ کے سامنے یہ تجویزیں رکھی کہ محمد، جب سے تم آئے ہو اور جب سے تم نے لوگوں کو اپنا دھرم چھوڑ کر اپنے دھرم کی طرف، یعنی ایک اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دے رہے ہو، لوگوں میں تفرقہ پیدا ہو گیا ہے، لوگ اپنے دھرموں کو چھوڑ رہے ہیں، ہمیں پریشانی لاحق ہو رہی ہے۔ محمد بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ مقصد اگر مال و دولت ہے تو ہم تمہیں اتنا مال دیتے ہیں کہ مکہ کے اندر تم سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہوگا۔ اگر تمہارا مقصد بادشاہت ہے، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ میں بادشاہ بن جاؤں، تو آج سے ہم تمام لوگ جتنے رؤساء مکہ ہیں، مکہ کے اندر سردار ہیں، سب کے سب مل کر تمہیں اپنا بادشاہ مقرر کرتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے تو مکہ کے اندر جو سب سے زیادہ خوبصورت عقل مند لڑکی ہے، ہم ان سے تمہارا نکاح کراتے ہیں۔ اور اگر تمہارے دماغ کے اندر کچھ پاگل پن ہے، کچھ جنون ہے، سحر ہے، کچھ کہانت ہے، تو وہ بھی بتاؤ، ہم تمہارا علاج کرائیں گے، بڑھیا علاج کرائیں گے، بہتر علاج کرائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہو گئے
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उतबा तुम कह चुके? उन्होंने कहा हाँ, मुझे जो कहना था, जो बातें मुझे कहकर भेजा गया था मुझे, मैं वो कह चुका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आपने फरमाया कि बस थोड़ा सा कुरान की आयत सुन लो। आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने कहा कुरान की आयत सुन लो। आपने हामीम सजदा की तिलावत शुरू की। जब आपने तिलावत शुरू की, कुरान जो है ना ये सहर बर्पा कर देता है। गैर मुस्लिम इंसान भी जब गौर और सुकून से और गौर से सुनता है इस पाकीज़ा कलाम को, मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की। ये उतबा बिन रबिया अपनी नजरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जमा कर ताज्जुब भरी निगाहों से आपको देखकर कुरान को बगौर सुनते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामीम सजदा तिलावत किए जा रहे हैं। जब इस आयत पर आप पहुंचे, फ़इन आरज़ू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिथला साइक़ति आदि व समूद, कि अगर ये लोग ना माने आपकी बात, अगर एक अल्लाह की वहदानियत को ना माने, तो आप इनसे कहिए कि भाई मैं तुम्हें उस अजाब से डराता हूं जो अजाब अल्लाह ने कौम आद और कौम समूद के ऊपर नाजिल किया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद बस करो, कि कहीं ऐसा ना हो कि ना मानने की वजह से हम पे ये अजाब नाजिल ना हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तिलावत को बदस्तूर जारी रखा, और जब आप इस सूरत को मुकम्मल कर चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे जो सुनाना था मैं सुना चुका, अब तुम्हारे हाथ में इख्तियार है। आपने कुछ भी नहीं कहा, कुरानी आयत को उनके सामने रख दिया। यही उतबा बिन रबिया जो रुआसाए मक्का के नुमाइंदा बनकर आए थे, और आपके सामने इन्होंने मुख्तलिफ बातें रखी कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन तुम अपने धर्म से बाज आ जाओ। तुम जो तफरका नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक पैदा कर रहे हो कि लोग अपने धर्मों को छोड़ रहे हैं, तुम छोड़ दो। जब ये जा रहे थे, इनके चेहरे के ऊपर हवाइयां तारी थी और बिल्कुल हवास पाख्ता थे। इनके चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ चुका था। जब दूर से अबू जहल वगैरह ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये उतबा वो उतबा नहीं है जो जाते हुए था, अब ये बिल्कुल बदला हुआ है। जब ये करीब आया तो रुआसाए मक्का ने मालूम किया कि क्या बात बनी। उसने क्या कहा पता है उतबा ने? उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि मोहम्मद को उनकी हालत पे छोड़ दो, इसलिए कि जो कुरान उस पे उतर रहा है, देखना ये कुरान एक अपना खास शान पैदा करेगा। ये किताब एक खास शान पैदा करेगी, लोगों के दिलों पर एक सहर बर्पा करेगा ये कुरान, ये अल्लाह का पाकीज़ा कलाम। लिहाजा अगर तुम उनसे टकराओगे तो अल्लाह के अजाब में जरूर गिरफ्तार होगे। कौन कह रहा है? काफिर इंसान के कुरान से टक्कर मत लो। कुरानी आयत जो मोहम्मद पे उतर रही हैं, अगर तुम उसके पीछे पड़ोगे तो मोहम्मद का नुकसान कुछ ना होगा, उनके ऊपर उतरने वाले कलाम पाक का नुकसान कुछ नहीं होगा, अपना ही नुकसान होगा। उन्होंने कहा मेरी राय तो ये है। क्यों? इसलिए कि अगर और अहले अरब उनके साथ ज्यादती करेंगे तो फिर तुम तो उनमें मुलव्विस नहीं रहोगे, तो अल्लाह का कोई अजाब तुम पे नहीं उतरेगा। छोड़ दो, अहले अरब जो करें करने दो। और अगर मोहम्मद गालिब आ जाते हैं अहले अरब के ऊपर तो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा भतीजा है, तुम्हारे कबीले का है, तुम्हारी इज्जत होगी। उतबा ने एक राय रखी। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह का पाकीज़ा कलाम जो अव्वल दिन से लोगों को हिदायत का रास्ता दिखा रहा है, इस कलाम पाक का मकसद सिवाय इसके कुछ नहीं है। ये अबू जहल, ये अखनस बिन शुरैक और अबू सुफियान, इन तीनों के बारे में आता है कि बज़ाहिर ये दिन में बैठकर इस्लाम को मिटाने की बातें करते थे, कुरान को मिटाने की बातें करते थे, लेकिन रात की तन्हाई में छुप छुपाकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे होते तो छुपकर कुरान को सुना करते थे। सीरत की किताबों में लिखा है। चुनांचे एक मौके पर ये तीनों के तीनों निकले रात की अंधेरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत बासआदत को सुनने के लिए, और जब सुबह होने लगी तो ये जब तीनों अपने घर रवाना होने लगे तो एक चौराहे पर तीनों आमने सामने हो गए। इन्होंने जब आपस में एक दूसरे को देखा तो हक्के बक्के रह गए कि ये क्या माजरा है। इन्होंने सब ने इकरार किया
कि हाँ, हम मोहम्मद की तिलावत को सुनने आए थे। वो पाकीज़ा कलाम क्या सहर बर्पा करता था कि एक मर्तबा जो सुन लेता था वो चैन और सुकून की नींद रात को सो नहीं सकता था, बार बार मजबूर करता था ये कलाम कि चलो सुने मोहम्मद की तिलावत को। चुनांचे इन्होंने आपस में अहद किया कि भाई हम ही लोग हैं जो लोगों को मोहम्मद से मुलाकात से रोकते हैं, और फिर हम ही लोग अगर ये गड़बड़ करेंगे, लोगों को पता चलेगा तो हमारा क्या हश्र होगा, फिर सारे लोग कुरान सुनना शुरू कर देंगे। लिहाजा आज अहद करो कि हम में से कोई भी आज से मोहम्मद की तिलावत को सुनने नहीं आएगा। चुनांचे इन्होंने आपस में अहद व मुआहदा किया कि आज से हम नहीं आएंगे। फिर जब रात हुई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत का वक्त हुआ, तो ये तीनों आपस में सोचने लगे कि मैं जा रहा हूं, क्योंकि मुआहदा हुआ, वो तो आएंगे नहीं। इसी तरह दूसरे ने सोचा कि वो दोनों तो जाएंगे नहीं, चलो मैं चलता हूं। चुनांचे दूसरे दिन सबने यही सोचकर कि कोई दूसरा नहीं होगा वहां, मैं जा रहा हूं, फिर चौराहे पे जमा हुए। फिर उन्होंने मुआहदा किया कि भाई ये गलत हो रहा है, लिहाजा आइंदा कोई ना आए। फिर तीसरी मर्तबा इन्होंने मुआहदा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये मजबूर थे कुरान सुनने पे। तीसरी मर्तबा मुआहदा किया, लेकिन तीसरे दिन भी जमा हो गए। बताने का मकसद क्या है कि अल्लाह का पाकीज़ा कलाम वो कलाम है कि इसमें रद्दो बदल करने की बात दूर की है। ये कुरान तो वो कलाम है जो इंसानों के ऊपर अपना जादू और अपना सेहर तारी किए बगैर नहीं रहता है, और इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। ये अल्लाह का पाकीज़ा कलाम वो कलाम है कि हजरत सहाबा ने सीखने के लिए अनथक कोशिश की है। अल्लाह की किताब और अल्लाह का कलाम वो कलाम है जिसने इस कलाम को हासिल किया, वो अल्लाह की नजर में काबिल एजाज बन गया। जिसने इस कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर लिया, खुदा की कसम अल्लाह की नजर में उससे बेहतर इंसान कोई नहीं है। क्यों? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, चाहे आप मेरी बातों पे आप यकीन करो ना करो, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सच्चों में सबसे सच्चे हैं, उन्होंने जब कह दिया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो बताओ जरा, जिसने उस पाकीज़ा कलाम को, पूरे कलाम पाक को अपने सीने में महफूज कर लिया, उसका क्या मकाम होगा? कल क़यामत के दिन अल्लाह उनसे कहेगा, उस हाफिज कुरान से, उस नन्ही मुन्नी जान से अल्लाह कहेगा जो कुरान पाक, बहुत से बच्चे हाफिज कुरान है लेकिन इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब उनका मकाम जब ये दुनिया वाले देखेंगे तो तरस खाएंगे, रश्क करेंगे। क्यों? क्योंकि एक एक हाफिज कुरान से, एक एक हामिल कुरान से अल्लाह कहेगा इक़रा, पढ़ो, वरत्तिल कमा तुरत्तिलु फी दुनिया, और आराम आराम से पढ़ो, और सिर्फ पढ़ो नहीं बल्कि ये जन्नत के दर्जे हैं, चढ़ते चले जाओ, चढ़ो, जन्नत के दर्जों पे चढ़ो। क्यों? फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा, क्योंकि तुम्हारा दर्जा जहां तुम्हारा कुरान पूरा होगा, जहां आखिरी आयत मुकम्मल होगी, वही तुम्हारा दर्जा होगा। और पूरे कुरान करीम के अंदर 6666 आयत हैं, जरा सोचिए कहां होंगे वो। दूसरी रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाफिज़े कुरान का जो मकाम है वो तो है ही है। एक वो इंसान जो हाफिज़े कुरान के वालिद हैं, वो औरत जो हाफिज़े कुरान की वालिदा है, खुशखबरी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनके लिए कि कल क़यामत के दिन उनको ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो सूरज से भी ज्यादा रोशन होगा। लोग देखकर रश्क कर रहे होंगे, आपस में तस्करा कर रहे होंगे कि क्या ये कोई नबी है या कोई शहीद है या कोई सिद्दीक है, इतना बड़ा मकाम मिला। कहा जाएगा कि ये हाफिज़े कुरान के माँ बाप हैं। लिहाजा जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया, उनके सीने में कुरान को महफूज किया, वो मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। चाहे दुनिया के अंदर आपको वो आराम ना पहुंचा पाए, जो आपका एक डॉक्टर बेटा आपको आराम पहुंचा दे माली एतबार से, जो आपका एक प्रोफेसर बेटा आपको आराम पहुंचा दे माली एतबार से, लेकिन याद रखिए कि आपका मुस्तकबिल यानी आखिरत बहुत रोशन है। तो मेरे दोस्तों, ये अल्लाह का पाकीज़ा कलाम वो कलाम है
कि जो चाहेगा कि इसमें रद्दो बदल हो जाए, अल्लाह उसको बदल देगा। जैसे इस खबीस इंसान को अल्लाह ने बदला, ईमान से महरूम कर दिया। हकीकत में ये ईमान वाला था भी नहीं, क्योंकि उलमा ने लिखा है कि ईमान वाला कभी मुर्तद नहीं हो सकता है, ईमान वाला कभी अपने मजहब को नहीं छोड़ सकता है, कभी अपने मजहब को बदल नहीं सकता। अगर कोई अपने मजहब को बदलता है तो इसका मतलब वो ईमान वाला था ही नहीं, ईमान की रोशनी उसके दिल में थी ही नहीं, ईमान का चिराग उसके दिल में नहीं जल रहा था, ईमान से आरी और खाली था, इसी वजह से उसने अपने मजहब को बदला है। तो ईमान वाला कभी मुर्तद नहीं हो सकता। पहले भी ईमान वाला नहीं था, लेकिन इस्लाम की चोली पहनकर अपने नाम के साथ मुसलमानों का नाम लगाकर ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह की जात बहुत बड़ी है कि अल्लाह ने इस खबीस को ईमान से बाहर कर दिया कि जाओ उनकी सफों में दाखिल होकर ईमान के ऊपर एतराज करो, ताकि मजहब इस्लाम का नुकसान ना हो, क्योंकि उनका काम, गैरों का काम ही यही है कि इस्लाम को मिटाने की साजिश की जाए। तो एक बात ये कि अल्लाह से पंगा नहीं लेना चाहिए। वबली लहुम मिन कैदी मतीन, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, जब पकड़ता है तो छोड़ता किसी को नहीं है। अल्लाह ने फिरौन को पकड़ा, ढील देते रहे, मोहलत देते रहे, लेकिन जब पकड़ा बच नहीं पाया। जब अल्लाह ने कारून को पकड़ा बच नहीं पाया, गिड़गिड़ाता रहा लेकिन बच नहीं पाया। तो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अगर कोई अल्लाह के दीन के ऊपर उंगली उठाएगा तो खुदा की कसम नहीं बचेगा। जैसे